of this chapter and we'll start with this. क्या दिया है यहाँ पे? Prove that. It says tan cube LHS से शुरू करते हैं. Tan cube of x upon 1 plus tan square x. I'll start with the LHS here. क्या बन जाएगा? LHS is equal to tan cube of x divided by 1 plus tan square x. I think I can substitute for this directly. नहीं, फिलहाल तो उसको ऐसे ही रखते हैं. दिस इज 1 प्लस tan square x प्लस cot cube x अपॉन 1 प्लस cot square x. क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? sec square x है ना? एंड व्हाट इज 1 प्लस cot square x? cosec square x. और एक चीज मुझे बताइए कि भाई इसमें दैट इज इक्वल टू, अब ये साइन क्यूब इज नथिंग बट सॉरी tan क्यूब इज नथिंग बट साइन क्यूब अपॉन cos क्यूब डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस cot क्यूब इज cos क्यूब x अपॉन sin क्यूब x डिवाइडेड बाय cosec square is 1 upon sin square. Correct? Well, इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा. Of course. क्या होगा? cos square x गया, cos square x गया, cos x बचा. sin square x गया, sin square x गया, sin x बचा. तो कुल मिलाकर क्या बचेगा बताइए? This will become sin cube x upon cos x plus cos cube x upon sin x. Well, I want the LCM to be taken over there. तो क्या करेंगे? मुझे यहाँ पर LCM चाहिए, तो मैं इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा. किससे? I'll multiply this by sin x and divide it by sin x. I'll multiply this by cos x and divide this by cos x. तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा बताइए मुझे? This will become, बोलिए. This is sin x raised to 4 है ना? That is sin square x का स्क्वायर plus cos square x का स्क्वायर whole thing divided by sin x cos x. Any doubt so far? Any doubt so far? समझ में आ रहा है सबको ये? अब मुझे एक चीज बताइए कि भाई if I have this, if I view this as a square plus b square, well, can I write this as a plus b bracket square minus 2ab है ना? तो इसको मैं वैसा लिखने की कोशिश करूंगा. क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम, यस, दिस विल बिकम sin square x plus cos square x का स्क्वायर. ओके, minus 2 times sin square x into cos square x. You see, और डिनोमिनेटर में वो sin x cos x as it is रहेगा. Is that clear? That is equal to, now this is 1 का square is 1, so this is 1 minus 2 sin square x into cos square x divided by sin x cos x. इसको सेपरेट कर लेंगे. If I separate this, what am I going to get there? Yeah, it cancels over here. And what is that equal to? This is sec x cosec x. Sec x into cosec x minus 2 times sin x cos x. Is that equal to RHS? Is this okay? समझ में आया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स सी कैसे करेंगे. LHS से शुरू करते हैं. LHS is equal to, this is sin 20 degree into sin 40 degree into sin 80 degree is equal to, मुझे लिखना है या प्रूव करना है. Now what I'll do here is, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा and I'll club this together so that this is 2 sin A sin B. What is 2 sin A sin B? Is equal to cos of A minus B minus cos of A plus B. Can I say so? Isn't it? तो क्या बन जाएगा बताइए? This will become half
और ये आएगा cos ऑफ 40 माइनस 20 माइनस cos ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, okay, into sine of 80 degree. Now that is equal to half into cos 20 degree minus cos 60 degree into sine 80 degree. Any doubt so far? Okay. Now let me send this inside. ये मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, तो क्या मिल जाएगा? दिस इज हाफ इंटू साइन 80 cos 20 minus half into sin 80 into cos 60. Is this okay? Alright. Once again, I'll multiply and divide this by 2. Correct? Multiply and divide this by 2. What do you get there? This will give me. बोलिए. Now I'll club this together and I'll club this together. क्या आएगा ये बताइए? This will become again 2 sin A sin B. Sorry, so 2 sin A cos B. This is also sin A cos B. Now what is 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B. Any doubts? Is that clear? 60 और 80. एक सेकेंड एक काम करते हैं, ये -√3/2. I will use this formula, no doubt about that, 2 sin A cos B, but I'll use it only here. और यहाँ पे यूज नहीं करूंगा. I'll tell you why. क्योंकि 60 और 80 का शायद कुछ कनेक्शन है. 90 60 और 80 का क्या कनेक्शन हो सकता है? sin of 80 160. या लेट इट बी. एक सेकंड, मैंने क्या बोला आपको? आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर एंड नॉट हियर. चेक करते हैं क्या आएगा, देखते हैं. दिस इज 1/4. क्या आएगा बताइए? साइन ऑफ 80 प्लस 20 प्लस साइन ऑफ 80 माइनस 20. देखिए मुझे यहाँ पर ना तो साइन 80 पता था या cos 20 पता था, बट शायद मुझे यहाँ पे cos 60 पता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. माइनस हाफ इंटू साइन 80. व्हाट इज cos 60? हाफ. तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा जी? दिस विल बी लाइक 1/4 एंड ये भी 1/4. सो आई विल टेक दैट ऑल 1/4 आउट, या फिर लेट इट बी एज इट इज. दिस इज 1/4 इन टाइम्स आएगा साइन ऑफ 100 डिग्री प्लस साइन 60 माइनस साइन 80. कैन आई से सो? अब 100 और 80 का कुछ कनेक्शन है. क्या कनेक्शन है? या सो आई विल राइट दिस साइन 100. कैसे लिखेंगे इसको? साइन ऑफ 180 माइनस 80. तो व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, second quadrant, this is sin theta. So this is going to be sin 80, correct? Can we please close the door? So that will give me what? 1/4. Sin 100 is nothing but sin 80. So this will become sin 80 plus sin 60 minus sin 80, and that is equal to, अब ये आएगा 1/4. What is sin 60 is equal to? So what will be the final answer? √3/8. That is equal to RHS. Is this clear to you all? समझ में आया? करते हैं. I'll start with LHS. इसमें tan जो है सारे के सारे उसको मैं sin और cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो क्या मिल जाएगा ये बताइए? This is sin 6 degree cos 6 degree. फिर sin 42 cos 42, sin 66 degree cos 66 degree,
साइन 78 डिग्री कॉस 78 डिग्री। अब इसमें कुछ कनेक्शन है किसी के साथ, कैसे करेंगे? व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लब हियर इन दोनों को 6 और 66, ठीक है, और 78 और 42 को मैं क्लब करूंगा इसको। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? आई राइट दिस एज, पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन 66 इंटू साइन 6, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन 78 इंटू साइन 42, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? सेम वैसे कॉस का भी रहेगा, सो दिस विल बिकम कॉस 66 इंटू कॉस 6 डिग्री, ओके, इंटू cos 78 into cos 42 डिग्री, ठीक है। I'll multiply and divide by 2 everywhere, like 2 2 and 2 2। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? न्यूमरेटर में यूज करेंगे 2 sin a इंटू साइन बी, और डिनोमिनेटर में यूज करेंगे 2 cos a इंटू cos b, है ना, 2 cos a इंटू cos b। तो what is sin a into sin b? Cos of a minus b minus cos of a plus b, and what is cos a cos b? Cos of a plus b cos of a minus b। अप्लाई करके क्या मिलेगा बताइए? दिस विल गिव मी, बोलिए, व्हाट डू यू गेट देयर? विल बिकम cos of a minus b, मतलब 66 minus 6, 66 minus 6 minus cos of a plus b, नहीं 66 प्लस 6 आएगा ना बाबा, 72, बराबर है क्या? हेलो, अरे माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी है ना, 66 प्लस 6, और इधर भी वैसे ही आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी 78 माइनस 42 माइनस कॉस ऑफ 78 प्लस 42, ठीक है। आगे बताइए क्या आएगा? डिवाइडेड बाय, व्हाट यू गेट देयर? यहां पर भी वैसे आएगा, cos a cos b is cos of a plus b which is equal to cos of 72 माइनस प्लस cos of a माइनस b, मतलब 66 माइनस 6 डिग्री, है ना। अच्छा, इनटू यहां पर क्या आएगा? cos of 78 प्लस 42 प्लस cos of 78 minus 42, now that is equal to, बोलिए, this is cos 60 minus cos 72 into cos, ये कितना आएगा रे? 5, this is 6 36 डिग्री minus cos of 120 डिग्री, करेक्ट। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? दिस इज साइन 72 प्लस cos 72 प्लस cos 60 इंटू cos ऑफ 120 डिग्री प्लस cos 36। चलिए आगे कैसे करेंगे बताइए? बस उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे मुझे। आई नो दिस वैल्यू, आई नो दिस वैल्यू। अब कल आपको लेक्चर में मैंने कुछ वैल्यूज याद रखने के लिए बताए थे, कौन कौन से? विच ऑल वैल्यूज आई आस्क्ड यू टू रिमेंबर यस्टरडे, इफ यू रिमेंबर। या ये वाले वैल्यूज कहाँ गए वो? ये है ना, these values I told you to remember yesterday. Same values I have to use here. Check.
चलिए कौन से वैल्यूज में यूज कर सकता हूँ बताइए मुझे। यहाँ पे cos 36 है यहाँ पे, या cos 36, cos 72 है यहाँ पे, ये रहा, है ना। cos 72 मतलब मुझे दो ही वैल्यूज याद रखने एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो, है ना। और cos ऑफ 120 डिग्री, व्हाट इज cos 120, या cos ऑफ 180 माइनस 60, फिर बोलिए cos ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा, करेक्ट, दैट इज माइनस cos 60, cos 60 इज, हाँ। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, देखिए cos 60, cos 60 is half minus cos 72 root 5 minus 1 upon 4 into cos 36 root 5 plus 1 upon 4 minus cos 120, माइनस ऑफ माइनस हाफ इज प्लस हाफ, सही है। चलिए आगे बताइए, cos 72 root 5 minus 1 upon 4 plus cos 60 half into cos 120 is minus half plus cos 36, now that is equal to, क्या आएगा बताइए। LCM लेना पड़ेगा मुझे, for the sake of LCM I'll multiply here by 2 and divide it by 2, it's 2 by 2, this is 2 by 2 and this is 2 by 2, is that okay? So what am I going to get there? This will give me LCM 4 आ गया तो मैंने प्रोसेस कर लिया। now this is 2 minus root 5 and plus आएगा, plus 1 आएगा, so this will become 3 minus root 5, is that clear? Correct, this is 3 plus root 5, is that okay? Correct. Now this is root 5 minus 1 plus 2, it is root 5 minus 1, सही है, and this is minus 2 plus 1, that is minus 1, है ना। so this is root 5 minus 1, is that okay? Correct. एक मिनट, यहाँ पर root 5 plus 1 आएगा ना, this is root 5 plus 1, है ना, and root 5 minus 1, is that okay? now that is a minus b, a plus b, a plus b, a minus b, so this is 3 3s are 9 minus 5 upon 5 minus 1, so this is 4 upon 4 is equal to 1, और वही मुझे प्रूव करना है। is that clear to all? no doubt this is a star problem once again, is that clear? ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर question number 29. Question number 29, this is again a half star question, this is again a half star question। चलिए शुरू करते हैं। LHS, yeah, there might be some correction, right? 25 डिग्री ना, 29, यहाँ पर 25 डिग्री होना चाहिए, so let me make this 25 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या आएगा, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू, क्या आएगा बताइए, कैसे करेंगे इसको। मैं क्लबिंग करूंगा इसका, तो क्लबिंग इज डन लाइक 47 और 25, इसको हम इकट्ठा लिखेंगे और इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, देखते हैं क्यों। अब यही क्लबिंग का स्टेप ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, अगर क्लब कर लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन 47 माइनस साइन 25 प्लस
साइन 61 माइनस साइन 11. सो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज गिवन बाय 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. अप्लाई करिए, दिस विल बिकम 2 cos c plus d 47 plus 25 upon 2 into sin 47 minus 25 upon 2 plus 2 cos 61 plus 11 upon 2 into sin 61 minus 11 upon 2. So that is equal to 2 times cos of, क्या आएगा बताइए, 72 36 डिग्री into sin of 11 डिग्री. सही है, बराबर है क्या, प्लस 2 times cos of 61 plus 11 72 by 2 36 डिग्री है इंटू साइन 25 डिग्री. कुछ कॉमन आएगा, 2 cos 36 डिग्री, 2 cos 36 डिग्री कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 25 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री. इज दैट क्लियर? So once again I'll make use of sin c plus sin d over here. Sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. क्या मिल जाएगा ये बताइए, this will become 2 cos of 36 degree into 2 sin c plus d 25 plus 11 upon 2. Is that okay? क्या आएगा, into cos 25 minus 11 upon 2. Now that is equal to 2 into cos 36, 2 to actually 4 आएगा ना यहाँ पे, 4 cos of 36 degree into sin of 25 35 36 18 cos of 25 14 7 degree, isn't it? अब मेरे ख्याल से हमको क्या क्या वैल्यूज पता है, यहाँ पे क्या क्या पता होता है मुझे, sin 18 is √5 minus 1 upon 4 and cos 36 is √5 plus 1 upon 4. Cos 36 is also sin of 54 and sin 18 is also cos of 72. ठीक है, एंड उसी तरह से मुझे 108 भी मैं लिख सकता हूँ, isn't it? So sin 18 is √5 minus 1 by 4 and cos 36 is √5 plus 1 by 4. सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin 18 is √5 minus 1 upon 4 and cos 36 is √5 plus 1 upon 4. याद रखिए ये दोनों वैल्यूज, और फिर ये क्या आएगा बताइए, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एंड दिस इज cos of 7 डिग्री. इसमें से एक 4 गया, व्हाट यू गेट देयर, 5 minus 1 upon 4 into cos of 7 degree, that is 4 by 4 and that is equal to cos 7 degree which is equal to RHS. Is this clear to all? So that's a half star problem. I hope this is clear to all. Any doubts about that? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंगल C is 2 pi by 3. 2 pi by 3 मतलब 120 डिग्री है ना. देन प्रूव दैट cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर, अब देखिए इसमें A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore, what is A plus B is equal to 180 minus C, 180 minus 120, 60 डिग्री. Any doubts? बराबर है क्या? अब मैं यहां पर कर लूंगा भी, what is cos of A plus B is equal to cos 60. Cos 60 is sin 30 is half ना, बराबर है क्या? This is equal to half. This is cos of A plus B भी से. चलिए अब LHS की बात करते हैं. What is the LHS given? LHS is cos square A plus cos square B प्लस कुछ दिया हुआ है, क्या दिया रे बाबा ये, cos square A plus cos square B
माइनस कॉस ए कॉस बी ऐसा दिया है ना, माइनस कॉस ए कॉस बी. कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? इसका मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू फॉर दिस? कुछ नहीं, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं. कैसे? मैं इसे लिखूंगा नो डाउट कॉस स्क्वायर ए प्लस cos square b, no doubt, that's okay, minus cos a into cos b. ठीक है, I'll multiply this by 2 and divide it by 2. Can I say so? इसे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा. क्या किया मैंने कुछ नहीं किया. I didn't do anything. Have I violated any of the laws? No. अब आप मुझे बताइए what is the formula for 1 plus cos 2 थीटा के लिए? क्या फॉर्मूला है? 2 cos square थीटा है ना. ये फॉर्मूला मैं इधर और इधर अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताइए. दिस विल बिकम हाफ into 2 cos square a is 1 plus cos 2a and this is 1 plus cos 2b. Any doubts about that? Any doubts about that? ठीक है. minus half into what is 2 cos a cos b, cos of a plus b plus cos of a minus b. Is that clear to all? Now that is equal to, ये क्या बन जाएगा 1 plus 1 2, बराबर है क्या? तो यहां से और यहां से मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आएगा 1 plus 1 is 2, so this will become 2 plus, now cos 2a plus cos 2b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? What can I say for this? This is cos 2a plus cos 2b, cos c plus cos d कर दो यहाँ पे तो क्या बनेगा? 2 cos a plus मतलब 2a plus 2b by 2 into cos 2a minus 2b by 2, right? Isn't it? और ये हाफ बाहर गया माइनस cos of a plus b माइनस cos of a minus b. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? दिस इज क्लियर. देखिए अब यहां से 2 कॉमन आके कैंसिल होगा, 2 कॉमन आके कैंसिल होगा, सो व्हाट यू गेट देयर? दिस विल बी हाफ इनटू क्या आएगा बताओ? 2 प्लस 2 टाइम्स ये क्या बचेगा यहाँ पर बताइए? व्हाट यू विल गेट देयर? दिस विल बी cos of a plus b, करेक्ट? cos of a plus b और ये बनेगा cos of a minus b माइनस cos of a plus b माइनस cos of a minus b. Any doubt so far? अब देखिए a plus b is half 60 डिग्री एंड cos of a minus a plus b कितना है? cos of a plus b is equal to half, करेक्ट? cos of a plus b is equal to half, सही है. तो क्या बनेगा? अब ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा? दिस विल बिकम हाफ इनसाइड द ब्रैकेट 2 प्लस ये गया, सिर्फ क्या बचा वहां पर? cos of a minus b माइनस हाफ माइनस cos of a minus b. कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पूरा गया, 2 में से आधा गया, 2 में से आधा गया, 3/2 and that answer is 3/4. What are we supposed to prove? 3/4, that is equal to RHS. Is this clear to all? Well, that's the end of this chapter. समझे?